ये वाला राइट? ये हमने पहले तो नहीं किया हुआ ना? मेरे ख्याल से ये वाला तो नहीं किया हुआ। नो सर, नो सर। अच्छा चलो ठीक है। चलो स्टार्ट यहाँ से करें कि क्या करना है इसमें। इंथैल्पी चेंज सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन, ठीक है। केसीएल सॉलिड है। तो ये क्या होगा अगर मैं यहाँ से ना केसीएल सॉलिड से इफ आई गो टू K+1 gaseous प्लस Cl-1 gaseous, तो ये क्या बात है? नेगेटिव वैल्यू सर। ये क्या नेगेटिव? अच्छा ठीक लैटिस है। एनर्जी। हाँ ठीक है। एरो की डायरेक्शन दूसरी होगी, दिस इज लैटिस एनर्जी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे इफ आई गो टू K+1 aqueous and Cl-1 aqueous, so what is this path? हाइड्रेशन सर। ठीक है, सो दैट्स इंथैल्पी चेंज ऑफ। अच्छा ये हाइड्रेशन है और ये क्या होगा इफ आई गो फ्रॉम दिस टू aqueous? डेल्टा हेड सॉल्यूशन। ठीक है, दैट्स डेल्टा एच। So that's delta H solution. Calculate the enthalpy change of hydration of magnesium ions. Uh, show your working. तो magnesium ions की the solution is given and और क्या given है? The lattice energy is given. Hydration of Cl ions is given. ठीक है. So based on this, I'm going to construct क्या होगी enthalpy of solution क्या होती है? It's turning into aqueous straight away. ये हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है? enthalpy of solution that's -155, ठीक है। अच्छा फिर वी कैन ब्रेक द लैटिस। तो Mg2 प्लस गैसेस प्लस 2Cl-1 गैस, ठीक है। इफ आई वांट टू ब्रेक द लैटिस तो कितना है? 2493 प्लस 2493। और फिर हाइड्रेट करना, ठीक है। इफ आई वांट टू हाइड्रेट इट तो आई वुड हैव टू हाइड्रेट मैग्नीशियम आयंस व्हिच इज, जिसका नहीं पता, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट एज एक्स एंड आई हैव टू हाइड्रेट 2Cl आयंस। Cl आयंस का कितना गिवन है? दैट्स -364 और वो क्या हो गया? टाइम्स 2, ठीक है। और फिर क्या, वन पाथ इज बेसिकली इक्वल टू दी, it's equal to the other path, ठीक है। So one path is equal to the, so that means -155 is equal to +2493 और क्या है? प्लस एक्स, कोई साइन तो मैंने गलत नहीं किया ना? प्लस एक्स एंड -364 टाइम्स 2। तो आंसर निकालो, क्या आ रहा है? एक्स क्या आ रहा है? व्हाट इज व्हाट इज एक्स? सर -1920। -19, 20। -192, ठीक है। टू एक्सप्लेन जीरो व्हाई। सर। हाँ, जीरो। 20। हाँ या। चलो ठीक है, 1920। अच्छा, I can explain the reasons why the lattice energy of MgCl2 is more exothermic than the lattice energy of KCl. ये क्या है? Why is MgCl2 more exothermic? What's the reason? Sir, it has a smaller ionic radius and stronger charge density. Smaller electric, हाँ ठीक है। एक तो एक तो it's got greater charge। वो क्लियरली थोड़ा लाइंस दी हुई है डिटेल में ना कि Mg is +2 एंड K is +1, ठीक है। और दूसरा ये कि it's got a smaller ionic radius as well, I guess।
अच्छा, so compared to K plus 1. So hence it forms a stronger ionic lattice. ठीक है? It's got a greater charge density. Why? Because it's got a greater charge density. ठीक है? ये भी बीच में ऐड करना है. अच्छा, define the following terms. What is the meaning of enthalpy change of atomization? Energy needed to form 1 mole of gaseous molecules from their elements in standard form. And that's, ये yeah, one mole of and gaseous that's molecules नहीं है, one mole of gaseous atoms atoms. from its element in its standard state. ठीक है? और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? Energy absorbed released when 1 mole of gaseous atoms gain 1 mole of electrons from 1 mole of gases minus 1 ions. ठीक है. What is meant by the term entropy? That's the measure of disorder. ठीक है? अच्छा, potassium chloride is very soluble in water at 20. Explain the solubility of potassium chloride by reference to change in entropy delta S. So potassium chloride, when it dissolves, what happens to the entropy? Increases And why? because of the dissociate ions. They increase this one. ठीक है, the number of particles increase as KCl dissociates. ठीक है? So you get more disorder. Use Gibbs equation in your answer to predict whether potassium chloride is more soluble in water at 20 or 80. Explain your answer. ठीक है? वो गिब्स ये हमने पोटेशियम क्लोराइड का निकाला था. अच्छा, पहले तो गिब्स वो क्या है? गिब्स दैट्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस व्हाट टी डेल्टा एस, राइट? तो डेल्टा एस का साइन क्या है? प्रिडिक्ट करना है, सो यू डोंट Positive. हैव टू. अच्छा, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, राइट? सो दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव. So that means this entire thing over here would have a negative value. Is that clear? अच्छा, और Yes. डेल्टा एच का जो साइन है ना केसीएल का, वो सोल्यूशन का, दैट मस्ट बी दैट्स प्रॉब्ली गिवन समवेयर. ठीक है? तो इट्स enthalpy of solution plus 15 है. ठीक है? That's also endothermic. ठीक है? तो this is positive. अच्छा, so you've got a positive term and you've got a negative term. ठीक है? So बताओ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, what will happen to the, so if you increase temperature, what is going to happen to the value of delta G? But if you increase temperature, the minus T delta S becomes more negative, right? मतलब ये लार्ज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है? तो hence overall your delta G would also become more negative. ये क्लियर है? Yes, sir. So for delta H here, why did we use the solution one? डिसॉल्व करने की बात नहीं है ना. Okay, okay. ठीक है? तो अगर मोर नेगेटिव होगा तो इट्स गोइंग टू क्या होगा उसका? It's going to become more soluble, right? More soluble, more feasible, right? Yes. तो more feasible. बस ठीक है. होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है? Reactant and catalysts have the same states, and then for heterogeneous they have different states. बस ठीक है. ये वाला रिएक्शन आ गया. हाउ डू यू एक्सप्लेन कि दिस इज कैटलाइज्ड बाय Fe2+? मतलब एक तो इसका याद ही रखना था, लेकिन this one, right? And you've got
वो जो आपका 2SO4 minus 2 plus 2 electrons, and that's नहीं वो मेरे ख्याल से दूसरा होगा, एक सेकेंड। इट्स अच्छा, S2O8 2 minus plus 2 electrons, and it's formed. They don't react together. What's the reason why this reaction has a very high activation energy? उसकी क्या reason थी? So because they're both negatively charged, they will repel each other. ठीक है, so they have a very high even though the reaction is very few. The higher gains and the lower loses, but there's not going to be any reaction, ठीक है। तो बीच में जब आप डालते हो ना Fe3 plus या फिर Fe2 plus 1 electron, sorry। So the lower loses electrons while the higher one gains electrons, 0.77 volts। तो पहला रिएक्शन क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एवरीवेयर, ठीक है। तो the reaction would be that 2I minus 1 would react with 2Fe3 plus। ये सेकंड नंबर पे लिखना चाहिए था, लेकिन चलो अभी। एंड इट फॉर्म्स I2 and forms 2Fe2 plus। और फिर वही चीज ना, the other one, the S28 high potential gains electrons while the Fe2 plus then loses electrons। तो फिर वो जो आपका S282 minus है ना, would react with 2Fe2 plus। और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 2SO4 minus 2 plus 2Fe3 plus। ठीक है, ये इक्वेशंस को उल्टा करके लिखते हैं ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्योंकि ही एडेड Fe2 प्लस ना, तो स्टार्ट कहानी जो होनी चाहिए थी वो Fe2 प्लस से होनी चाहिए थी। 2 से स्टार्ट होना चाहिए था, फिर 1 पे एंड होना चाहिए था। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, और वो पूछ भी रहे कि व्हाई इज इट हैविंग अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। so because they're negatively charged ions, they will repel each other. हाँ, और इधर अब नाउ दे ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO। तो इसके रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर। अंडर सर्टेन कंडीशन रेट कांस्टेंट भी गिवन है, तो सब कुछ तो दिया हुआ है। तो रेट इक्वेशन क्या होगा, इट्स गोना बी KNO स्क्वायर्ड। हाँ, सेकंड ऑर्डर है ना, NO के रिस्पेक्ट से स्क्वायर्ड। एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, तो O2 इज पावर 1, राइट। अच्छा, ये आ गया। अब उसके बाद ये कि ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालो ना, कि K की भी वैल्यू गिवन है। they've given you the concentration of nitrogen monoxide and they gave you the concentration of oxygen। क्या वैल्यू आ रही है रेट की? So 8.47 times 10 power negative 3. कितना? 8.47 टाइम्स 10 power negative 3. अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगला एक्सप्लेन। वो कह रहा है इस रिएक्शन की ना, इट्स गॉट अ कांस्टेंट हाफ लाइफ, दिस वन। तो इस रिएक्शन की, तो व्हाई इज दिस द केस? Why does this have a constant half-life? So because the only one factor here has order of reaction 1. How much the order of reaction is 1, ठीक है। First order reaction have constant half-life,
सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ डबल होती रहती है. यूज द इन्फॉर्मेशन दिस क्वेश्चन शो दैट द हाफ लाइफ द रिएक्शन इज दिस. तो वो क्या फॉर्मूला था हाफ लाइफ का और रेट कांस्टेंट के का? 0.693 divided by T half. और डिवाइड बाय टी हाफ विच इज 77 टाइम्स 10 पावर 4. तो क्या वैल्यू आ रही है? So 2.50 times 10 power 5. ठीक है. अच्छा, so this many moles of this are added to 100 cm cube of water. Calculate the time taken for the concentration to fall to. अब हाफ लाइफ कांस्टेंट है. वी नो द हाफ लाइफ. ठीक है, वी ऑलरेडी नो दिस हाफ लाइफ. तो पहले तो बताओ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है क्या. मतलब what's the initial concentration? That's 8 times 10 power minus 6 moles divided by 0.1 mole per dm cube, right? तो क्या आ रही है? 8 times 10 power minus 5 mole per dm cube, right? Yes, sir. अब बताओ कि टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू डिक्रीज टू दिस. अब मुझे बताओ कि कितना टाइम लगेगा, कितनी हाफ लाइफ्स लगेंगी टू गो टू 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 6. The half life is constant, so how many times must the concentration decrease? या बेसिकली अगर वो 10 की पावर घटा लो तो बेसिकली कहाँ 80 से जाना है कहाँ तक? 2.5 तक, राइट? तो मुझे तो कि कितने टाइम्स उसको हाफ करना पड़ेगा. मतलब पहला क्या होगा? 80 टू 40 इज वन हाफ लाइफ, राइट? 40 टू 20 सेकेंड हाफ लाइफ. 20 टू 10 थर्ड हाफ लाइफ. 10 टू 5 फोर्थ हाफ लाइफ. 5 से 2 तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ्स. ठीक है, दैट्स 5 टाइम्स क्या है? 2.77 टाइम्स 10 to the power 4. ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ तक पहुंचना था. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है. This is so 1.39 times 10 power 5. चलो ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन. you've got a bunch of equations. Electrochemistry. Describe the standard conditions क्या होती हैं in a 1 cell? mole per dm cube and 1 atmosphere pressure with 298 kelvins. अच्छा, so it's 1 mole per dm cube, 1 atm pressure and 298 kelvins. ठीक है. अच्छा, डायग्राम ये 10 मुझे तो ये कौन सा उसने कहा कि एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है. तो पहले तो what type of electrode would this tin 4 plus tin 2 plus I mean, what would this how would you draw this one? Platinum, sir. Platinum electrode with a hydrogen one. I mean, you're going to add a platinum electrode or tin 2 plus or tin 4 plus would both be part of the solution. और दोनों की concentration क्या होगी? अगर standard है तो 1 mole per dm cube. ठीक है, make sure you
और दूसरी साइड पे क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सोल्यूशन में क्या होगा, H+1 aqueous, एंड दैट विल ऑल्सो बी वन मोर per dm cube। और फिर वोल्ट मीटर होगा, इसे कनेक्ट कर दो, और कनेक्ट करने के बाद मेक श्योर दैट यू ऐड द, अच्छा मेक श्योर दैट यू ऐड द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, वो बीच में लाजमी ऐड करना है। तो बस यही, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक्सप्लेन equal volumes of 1 mole per dm cube, 1 mole per dm cube Cl-1 are mixed. Use relevant E0 values to explain whether reaction occurs between the two or not, ठीक है। तो 10 2 प्लस और Cl-1 स्टैंडर्ड कंडीशंस है। तो 10 2 प्लस यहाँ पे भी है, और Cl-1 यहाँ पे भी है, और Cl-1 यहाँ पे भी है। अब मेरे पास इन चारों में से who's going to gain electrons, who's going to lose electrons, रिएक्शन क्या होगा। Sir, the 1.36 and 0. Negative 0.14, can it work? नहीं, 1.36 will not work। वो इसलिए वर्क नहीं करेगा कि द हाई पोटेंशियल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सो दिस इज द, मतलब ये सारे ना, ये है। Oh, अच्छा, सो द हायर वन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, सो इफ दिस इज द हायर वन, तो we don't have Cl2. Cl2 will not be able to gain electrons, ठीक है, we wanted to lose electrons, we don't want it to gain electrons, तो you won't have a reaction because you don't have Cl2, ठीक है। तो इसको तो हटा दो, क्योंकि although it was the higher one, but it probably isn't gaining electrons, ठीक है। फिर higher next कौन सा है, ये वाला है, तो it should be gaining electrons, right? Again मसला है कि it's not Cl-1 that's gaining electrons, it's Cl0-1, we don't have Cl0-1, ठीक है, तो ये भी निकल गया। फिर अगले के साथ भी वही इशू है, अगर उसको हायर लेते हो, ठीक है, फ्रॉम द रिमेनिंग वन, तो उसमें भी वही मसला है कि इट्स you can't use this because it's not Sn2 plus that's gaining electrons, it's Sn4 plus that's gaining electrons। तो एंड में आपके पास Sn2 प्लस बचता है, और फिर प्रॉब्लम है कि इट कांट बी द हायर वन बिकॉज इट्स द लोएस्ट वन, सो मसला ये है कि Sn2 plus would not be able to gain electrons because no one would be willing to lose electrons compared to it, ठीक है। तो you're not, नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि Sn2 plus has a very low potential and cannot be reduced, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज सारों में सबसे लोएस्ट वही है, ठीक है। ये क्लियर है। sir, do we also need to give values in the answer? दे दो तो बेहतर है, आई थिंक। हाँ, इसको देख लेते हैं कि हाउ इज दिस, कौन सा वाला था। ये वाला ना। अच्छा, सो नो रिएक्शन, ठीक है, बोथ ई नॉट वैल्यूज -0.14। अच्छा, तो
उसने वैसे वो ई सेल कैलकुलेट किया हुआ है। या वो दूसरा भी लिखा हुआ है, और SN2+ इज मोर नेगेटिव स्मॉलर देन। तुमने ये वाली बात की है, ठीक है, दैट मेक सेंस। तो उसे वैल्यू, उसका SN2+ हैज अ वेरी लो नॉट वैल्यू, वो लिख देना चाहिए था कंपेयर टू Cl2Cl-1 इलेक्ट्रोड। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब वो कह रहे VO2+ के साथ SN2+ एंड VO2+। तो इन दैट केस विल यू हैव अ रिएक्शन? तो ये कौन सा VO था, VO2+? हाँ, 2+ उसका चार्ज है। Bottom. अच्छा, VO2+। तो रिएक्शन तो अभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब व्हाई व्हाई वुड देयर बी अ रिएक्शन? होगा कि नहीं होगा? Because it definitely can't gain electrons. SN2+, it definitely cannot gain electrons. मतलब वो क्लियर है कि why can't it gain electrons? Because the other one is not going to lose electrons. हाँ, the other one will not be able to lose electrons because its potential is higher, it's not lower, ठीक है। तो ये क्लियर है, SN2+ गेन तो नहीं कर सकता VO2+ के साथ, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो फिर दूसरा चेक करो कि can your SN2+ lose electrons instead? अच्छा, to lose electrons, it has to be the it has to be having the lower potential, ठीक है। तो we need someone who has a higher potential, तो वो है हमारे पास। we've got we've got VO2 plus that, it's got the higher potential, ठीक है। तो इनका रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये वाली यूज नहीं कर सकते क्योंकि he was talking about VO with a 2+ charge, not this particular particle, ठीक है। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. और इन दोनों का रिएक्शन फिर लिख लो, लिख भी लेते हैं कि क्या रिएक्शन, इट्स SN2+, दैट्स द रिएक्टेंट। ये पूरी इक्वेशन जो है ना मल्टीप्लाई बाय 2 होगी, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो इधर रिएक्टेंट कौन सा, इट्स 2VO2+ plus 4H+1, and the products in the first one is SN4+, और second one में product जो है ना, that's 2V3+ plus 2H2O, ठीक है। अच्छा, so a solution of SnCl2 is electrolyzed by measuring time using a steady current and mass of तो SN deposit हो रहा है। Al2O3 is electrolyzed for the same time by the same current. Calculate the mass of aluminum metal produced at the cathode. Give your answer to three significant figures. तो आप बताओ कि this is tin getting produced. But how many are getting produced? Is it gaining electrons? हाँ, वो तो गेन कर रहा है ना, वो कैथोड पे, वो तो उसने लिख दिया ना। 10 2+ था ना, and now tin is getting produced. मुझे तो how many moles of tin are getting produced? 2.95 grams. कितने मोल्स बनते हैं? 0.025. अच्छा, इसके मोल्स बन गए 0 तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो डबल होंगे, दैट्स गोना बी 0.05, राइट? वो क्लियर है?
तो Yes. अब दूसरा जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ना, इट्स द सेम टाइम एंड द सेम करंट, राइट? So if it's the same time and the same current, so you'll have exactly the same moles of electrons, right? तो Al deposit होने की क्या equation है? That's this one. So you have the same moles flowing क्योंकि same time, same current, तो same amount of electrons, ठीक है? तो एल्यूमिनियम के मोल्स कितने होंगे? वो 0.05 डिवाइडेड बाय 3 होगा, ठीक है? So that's 0.0167 moles. और उसको इनटू mr कर दो, ठीक है? ar which is 27, तो मास आ जाएगी। 0.45 grams. ठीक है, 0.45 grams, Sir, why is the mole of the electrons the same? क्योंकि टाइम और करंट सेम है ना, तो Q is equal to IT होता है, तो दैट मीन्स द सेम चार्ज फ्लोज ना। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करे तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे। तो सेकंड एक और एक्सपेरिमेंट था ना, सो यू हैड द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द अदर वन, ठीक है? तो उससे फिर एल्यूमिनियम के मोल्स निकाल लिए, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. बस ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो है ना, वो होमवर्क है इसमें, ठीक है? कल करते हैं, ठीक है? Okay, sir. चलो, ओके। Allah Hafiz. Thank you, sir.